ڈاکٹر محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی جو سٹوری ہم نے دیکھی پڑھی اور جو کام آپ نے کیا, تو سب سے پہلے تو ہم جائیں گے آپ کے گاؤں کی طرف, وہ بچپن کی یادیں تھوڑی سی تازہ کریں گے, آپ سے جانیں گے کیسی کیا سوچ کر اسلام آباد کی طرف آئے, اس وقت آپ کیا کرتے تھے, کون سا آپ کا علاقہ تھا, تعلیم جب حاصل کی تو کیا کیا سوچ جو تھی وہ تھی, دوستوں کے ساتھ کیا گفتگو کرتے تھے, آپ سے ہی سننا چاہیں گے. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تو ماشاءاللہ میرا بچپن یاد کرا دیا. میں سیالکوٹ کے قریب ایمن آباد روڈ کے اوپر ایک گاؤں ہے کمال پور, وہاں پیدا ہوا. وہاں سے میں نے آغاز کیا اور لوکل ہی میں نے تعلیم حاصل کی, اور ساتھ ایک ولیج تھا گوہیں کی, جو وہاں میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی. کرنے کے بعد میں ڈسکا شفٹ ہو گیا. ڈسکا اور سیالکوٹ کا فاصلہ ہمارے گاؤں کے درمیان میں. یوں اگر میں تعارف کراؤں کہ میرا گھر اور علامہ اقبال کا گھر ٹوٹل 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. ہاں جی ماشاءاللہ. تو ڈسکا کیونکہ میرے نانکے تھے اس لیے میں ادھر شفٹ ہو گیا. شفٹ ہونے کے بعد میں نے بی فارمیسی کی 78 میں. تو میرے اندر ایک جنون تھا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں, ماں باپ کے لیے نہیں, پبلک کے لیے کچھ کروں. میں پوری تعلیم حاصل نہ کر سکا. میرے جذبات نے اس حد تک مجھے مجبور کیا کہ میں نے پریکٹس شروع کر دی. جب پریکٹس کے دوران ہی میں نے ایک ایسا سبب پیدا ہوا کہ میں ایک یکدم اس فیلڈ کی طرف آ گیا جو میری فیلڈ ہی نہیں تھی, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو میں نے الحمدللہ سیالکوٹ, سمڑیال, ڈسکا میں بہت اچھا کام پراپرٹی کا کیا. تو اس سے کے بعد میں نے سوچا کہ دنیا جب تھوڑی سی انسان ترقی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں, ادھر چلا جاؤں, ادھر. میرے اندر جو جذبہ تھا, میرے اندر یہی تھا کہ میں عوام کے لیے, پبلک کے لیے میں کچھ کر سکوں, اپنے ملک کے لیے کر سکوں. تو میں اسلام آباد آج سے 26 سال پہلے شفٹ ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کا قیمتی احساس ہے. آپ نے وہاں سے شروع کیا, وہاں سے آپ اوپر آئے, لیکن آپ نے کہا کہ میں پبلک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. پبلک نے اسے گڈ مارننگ شو میں آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ کہ پبلک کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکیں کہ جو پچھلے 10 سالوں میں ریئل اسٹیٹ میں, کنسٹرکشن میں ایک بوسٹ آیا ہے, اس کے بعد ہر نوجوان چاہتا ہے کہ نظر ایسا آتا ہے کہ بہت جلدی اور کم وقت میں آپ اچھا پیسہ کما لیتے ہیں. اس کی وجہ سے اب رجحانات زیادہ ہو رہے ہیں, زیادہ بڑی تعداد میں نوجوان اس طرف آ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم بہت زیادہ ضروری نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, آپ کو شعور ہونا چاہیے, آپ محنت لگن ہونی چاہیے. تو اس فیلڈ میں آپ بغیر تعلیم کے بھی بہت کچھ کما سکتے ہیں. جو ینگسٹرز آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ اس کام کو اگر وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کم وسائل کے ساتھ کس طرح سے شروع کیا جائے تاکہ ان کو کوئی گائیڈ لائن مل سکے؟ اچھا, میں دراصل کیونکہ یہ حادثاتی طور پر اس لینڈ پہ آیا تھا, تو ہمارے گاؤں میں یا تحصیل میں یا اسلام آباد میں جو آج سہولت ہے وہ ایک کامن ہے. مثال کے طور پہ موبائل ہے, واٹس ایپ ہے, ای میل ہے, ایسی سہولت ہے جو میرے زمانے میں نہیں تھی. اور ہمارے ماں باپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور بچوں کو پالنا پوسنا اور آج کے زمانے سے اس سے مختلف تھا. تو آج جو صورتحال ہے وہ تو ہر بچہ جب پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے تو داخلے کے فوراً بعد جب اس کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو میٹرک اور مڈل تک پہنچتے بچے کی بیس بن جاتی ہے, اور ماں باپ اور استاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس ڈائریکشن پہ جانا ہے, یہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, کیا بنے گا. مختلف سوچیں ہوتی ہیں, اور وہ اگر کچھ نہ بن سکے تو وہ کم سے کم وکیل تو بن جاتا ہے. اچھا سر, آپ سے جانیں گے, جس طرح سوہا نے ذکر کیا کہ خاص کر جو نوجوان ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غوثیہ انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی. یہ ہے کیا کام آپ کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں ہے, آپ کی پوری ٹیم جو ہے کس طرح کن شہروں میں آپ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا, میں سب سے پہلے تو شروع میں جب آیا تو میں نے اسلام آباد کو 6 مہینے میں اسٹڈی کیا. کرنے کے بعد E11 ایک سیکٹر ایسا ہے کہ میں نے اس کو فوکس کیا, اور شروع میں
ऐसे हालात थे कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस वक्त 7 लाख रुपए का एक प्लाट बेचना बहुत मुश्किल था। अच्छा। मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। आज वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 6 करोड़ का रुपये भी नहीं मिलता आज की सूरत हाल। अब ये वहाँ जब प्लाटों के मामला से हम फारग हुए तो मैंने कमर्शियल वहाँ पहला प्रोजेक्ट किया और वहाँ से मैं 11 प्लाजे बना के अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकला। तो मेरा कहने का मकसद उस फिर मैं मुख्तलिफ सोसाइटियों में इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जहाँ भी मुझे अच्छी जगह लगी मैंने वहाँ डेवलप किया। आजकल मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है बैरिया फेस 8 में, अच्छा, जो जिसका नाम बहुत ही आपको सुन के महसूस होगा अच्छा है कि दी टाइटैनिक। वाह, हमने पानी से निकाल के खुशकी पे रख दिया है। क्या बात है, गुड आइडिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, एक नाम अच्छा है, एक बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लोकेशन अच्छी है। उसके अलावा और भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ साथ मैंने ग्वादर में 2004 से लेकर अब तक मुसलसल मेरा आना जाना है। वहाँ मेरी सोसाइटी भी है मगर मैंने बुकिंग नहीं शुरू की और भी इंशाल्लाह 2-4। अच्छा, ये गवादर के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका नया प्रोजेक्ट है गवादर में, किस किस्म का फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें गवादर एक ऐसा प्रोजेक्ट है या सीपेक को हम पूरे इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो ये बड़ा बूस्ट अप पाकिस्तान को दे सकता है। फ्यूचर आप इसको कैसे देखते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी जो है वो सेफ आप देखते हैं? ग्वादर दरअसल 2004 में जो मैंने देखा उसके बाद मुख्तलिफ मौके आए। अच्छा। और आज से 12-14 साल पहले एक सेमिनार वहाँ हुआ जो कि 26 मुल्क के सेनेटर आए और वहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिला। अच्छा। मैं उस वक्त 15 साल पहले ये अवाम को मैसेज दिया था कि ये ना सिर्फ सी पैक पाकिस्तान के लिए है बल्कि ये 70 मुल्कों का एक जॉइंट वेंचर है। ये जब मुकम्मल होगा, जो मुकम्मल होगा, हर आज तो चाइना और मुख्तलिफ मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सी पैक का हिस्सा बने। एक वक्त आएगा कि मुल्क कहेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह जी है। इस किस्म का इसका वो है। डॉक्टर साहब ये आपसे फरमाइए। जानना चाहेंगे गवादर का आप। जी रो साहब। मैं डॉक्टर साहब के हवाले से ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि जापान का जिक्र इनके नाम के साथ आ जाता है तो वो क्या ताल्लुक है, वहाँ से आपने क्या सीखा? और दूसरी बात ये कि बिल्डिंग में माशाल्लाह आपने बहुत नाम कमाया है, बहुत कामयाब आपने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इस हवाले से कोई मुश्किलात हों तो ज़रा उनके बारे में भी बताइए जिनको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। दरअसल जो कामयाब इंसान होता है हर वो काम करके खुश होता है जो मुश्किल से मुश्किल हो। जब मुश्किल काम उसके लिए होता है जो कर नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं एक ये मिसाल देता हूँ, मैं जापान जाता हूँ या कहीं और मुल्क में जाता हूँ, मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए वो मुश्किल नहीं है। हो सकता है उनको उर्दू और पंजाबी बोलना मुश्किल हो। इसी तरह ये कारोबार का भी हिस्सा है कि जब कोई एक सर्विसमैन है उसके लिए और बिजनेसमैन के लिए कारोबार करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कारोबार का एक ज़हन और रिस्क और इसमें उसके अंदर की जो ख्वाहिशात होती हैं, जहाँ उसके अंदर जज्बा होता है, वो ही उसको आगे लेके चला जाता है और रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। मगर उसमें जो है ईमानदारी, दयानतदारी और लोगों के पैसे का इस तरह एहसास करे, वो जिस तरह अपने पैसों का भी करता है उससे ज़्यादा बल्कि बढ़ के करे तो फिर ही कामयाबी मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं, ज़ाहिर बात है जिस तरह हमने देखा कि रियल स्टेट में जिस तरह बूस्टअप आया, खासकर माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मुझे याद है कि रियल स्टेट बड़ा टॉप पे जा रहा था। अब भी हम देख रहे हैं कि जो है थोड़ी बहुत वो उशनी हमेशा प्रॉपर्टी में आती रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई, लेकिन इसी के साथ साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा लोगों को होते हैं, खासकर बिल्डर्स को। आपको किन किन मसाइल का सामना होता है, या जो काम करते हैं या जो बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको यहाँ पे आके किन किन मसाइल का सामना होता है? अच्छा, जो बाहर से आते हैं उनके लिए मसाइल
हमें मसाइल जो बिल्डर हैं वो दो अलग टॉपिक हैं। हमारा टॉपिक ये है कि अगर जो हमें खाम माल चाहिए वो मौजूदा हुकूमत को ऐसा अदारा होना चाहिए जिसको ये नज़र हो कि एक साल में हमें इतना स्टील चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतनी बजरी, हर चीज़ की उसके ज़हन में वो अरेंज करके रखें कि 6 महीने में इतनी चाहिए, साल में इतनी चाहिए, 2 साल में ये चीज़ इतनी चाहिए। तो फिर ये मसाइल पैदा नहीं होते। ये तो एक हो गई। वैसे गवर्नमेंट को मैं साथ साथ ये भी तजवीज़ दे दूं कि अगर वो पाकिस्तान में जितने भी चैम्बर हैं वहाँ से 10-20 आदमी हर चैम्बर से बुला के कन्वेंशन सेंटर में आके उनकी बात सुने, मसले सुने, तो आने वाले वक्त में जो मसाइल पैदा होते हैं बिल्डर के लिए, डेवलपर के लिए, वो ना हो। एक तो ये हो गया सवाल। दूसरा, पब्लिक के लिए जो आपने कहा कि मसाइल, वो जब देखें हम दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करने के बाद हमारी आखिरी ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत घर अपना बना लें, ज़री ज़मीन ले लें या कोई ऐसी चीज़ फॉर्म बना लें जहाँ हम रह सकें, जा सकें। उसके लिए हम पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं मगर उसका इस्तेमाल हम इतना अच्छे तरीके से नहीं करते। हम जो इर्द गिर्द हमारे दोस्त अहल बाब होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं, उनके सहारे के, उनके कहने को आने पे, जो सुनी सुनाई बात पे अमल करके हम उनको सारी जमा पूंजी दे देते हैं। उसमें पता नहीं वो रजिस्टर्ड है नहीं है, वो धोखा करेगा, क्या करेगा, आपको डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। मेरी ये पब्लिक को राय है कि आज का तरक्की याफ्ता दौर गुजर रहा है, CDA हो या जीडा हो, ग्वादर, उसकी वेबसाइट पे जाएं, आप देखें ये सोसाइटी का स्टेटस क्या है, फिर आप खुद साइड पे विजिट करें। विजिट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ग्वादर लोग जब भी हम बात करते हैं वो कहते हैं ये ग्वादर बहुत दूर है। यार कहाँ दूर है? जब आप मेहनत के लिए, रोजी रोटी के लिए दीन दुनिया से बहुत दूर चले जाते हैं, 2-2 4-4 साल बच्चों के नहीं मिलते, तो वो भी तो आप बर्दाश्त करते हैं। तो आप यहाँ से कराची में जाने के लिए ट्रेन पे बैठे, आगे बेहतरीन बसें हैं और 1000 रुपया लेती हैं और ग्वादर आपको पहुंचा देती हैं और इतना खूबसूरत नज़ारा है। आप वहाँ जाएंगे, आपको डॉक्टर साहब, मैंने गवादर को विजिट किया हुआ है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि वहाँ पर बहुत सारी जगह को तो ऑलरेडी चीन ने फ्रीज कर लिया है और वो उस जगह की क्रेडिबिलिटी को और उसकी पावर को जानते हैं। मतलब वहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन या हमारी डेवलपमेंट कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन CPEC की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन नहीं अंदाज़ा तो हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आपका जो जॉनरा है, अगर हम ये टाइटैनिक लग्जरी एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक हाई राइज बिल्डिंग है। अब हमने सोसाइटीज़ बहुत बना दी हैं। आप कंस्ट्रक्शन के बीइंग अ डेवलपर, आपको पता है कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में से अब वर्टिकल ग्रोथ यानी बिल्डिंग्स जो कि आप लग्जरी एक्सपीरियंस बना रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, या हाउसिंग सोसाइटीज़ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती चली जा रही है, वो तो हमें नुकसान दे रही है, वो तो शहरों को बहुत आगे तक लेके जा रही हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन को ख़राब कर रही हैं? अच्छा, ये इतना प्यारा सवाल है, इसका जवाब देने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, मगर मुख्तसर करूँगा। तो देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो मैंने जहाँ भी गया हूँ, जिस मुल्क में भी गया हूँ, मैंने देखा है जो ज़री ज़मीन है उन्होंने इस तरीके से संभाल के रखी है जिस तरह हम अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं। और उन्होंने वहाँ घर बनाए हैं जो पहाड़ी इलाका है जहाँ कोई ज़री इजनास नहीं हो सकती, ये वहाँ उन्होंने रिहाइश रखी है और जो ज़री ज़मीन है उसको ज़ाया नहीं करते। अल्लाह का दिया हुआ हमें तो ज़री ज़मीन भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, समुंदर भी है, हर चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है, मगर हमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है। हम जब आप बलूचिस्तान में जाएं तो आपको मैं कहता हूँ 5% जगह हमने यूज़ नहीं की, सारी खाली पड़ी हुई है। ज़री ज़मीन भी है, अच्छी ज़मीन भी है, पहाड़ी भी है, और मेरे ख्याल में तो वहाँ 110 के करीब नए मॉडर्न विलेज और नए शहर आबाद होने चाहिए ताकि पंजाब के लोग वहाँ शिफ्ट हो सकें, कारोबार कर सकें। आने वाले वक्त में मेरी अपनी ज़ाती सोच है, राय है, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। ये ग्वादर, पसनी, जीवनी,
ये एक जाइंट वेंचर होएगा। ये 180 किलोमीटर जो है आपको पूरी आबादी नज़र आएगी। वहाँ कारोबार ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो पाकिस्तान के से बाहर गए हुए हैं वो भी वापस आएंगे, और उनको देख के इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ दूसरे मुल्कों वाले भी आके ग्वादर में ही काम करेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब आपके बारे में ये बात भी जी हरमीत जी साहब, आप हरमीत बात करो फिर मैं करता हूँ। कंटिन्यू करें आप। जी अच्छा डॉक्टर साहब आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि बल्कि जब आप इस्लामाबाद आए तो यहाँ पे कई ऐसे एरियाज थे कि जो जंगल थे, और वहाँ पे आप जब काम आप शुरू करते थे तो बहुत सारे लोग कहा करते थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखें वो मिट्टी जो है वो सोना बन चुकी है। आज आपने जिक्र किया बलूचिस्तान, हम सिंध और इन इलाकों में भी जाते हैं तो बहुत सारे इलाके जो हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हाई राइजिंग बिल्डिंग की बात हो रही है, यानी नहीं, दूसरी जानब हम जिस तरह देख रहे हैं कि सोसाइटी है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी या लाहौर की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे ज़रई ज़मीन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, मुतबादिल कोई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कितना नुकसानदेह है फ्यूचर के लिए? ये फ्यूचर के लिए इतना नुकसानदेह है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं करता। अदारों को ये सख्ती से निपटना चाहिए। कोई भी घर या फैक्ट्री या कोई सोसाइटी वो अदारों की इजाज़त के बगैर नहीं बननी चाहिए। वो प्लानिंग होनी चाहिए कि ये हमें ज़मीन, अगर मैं इसके साथ थोड़ी सी अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं जापान गया हूँ, कई दफ़ा गया हूँ, 10-12 दफ़ा, तो मैंने वहाँ बहुत स्टडी किया है। पहली तो ये बात है कि वहाँ घर 10 मरले का है, 5 मरले का है, 2 कनाल का है, उसके इर्द गिर्द जितनी जगह है वो चीज़ उसमें काश्त करते हैं जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक है। सलाद, सब्जियां, फूल, दरख्त। इसके अलावा जहाँ भी वो जगह मैंने कहीं वो 10 मरले क्या 10 फुट भी नहीं देखी कि उस जगह को ऐसे ही उन्होंने बेकार छोड़ा हो। जिस तरह हमने हज़ारों एकड़ बेकार छोड़ी है, पता ही नहीं है यहाँ क्या, कोई रिसर्च ही नहीं है कि यहाँ दरख्त कौन से लग सकते हैं, यहाँ सब्ज़ी कौन सी हो सकती है, मगर वहाँ की हर चीज़ को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ना सिर्फ पानी, बिजली, रोड, हर चीज़ को उन्होंने इस तरह कंट्रोल किया हुआ है। उन्होंने साबित करके बता दिया है कि सबसे ज़्यादा असास हमें अपने मुल्क का है और वक्त का है। जी रो साहब। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बड़ा हम्बल सी बिगनिंग जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, छोटी तरीके पे शुरू किया, इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली, तो अब फ़ख्र तो होता होगा कि इतना हम्बल सी बिगनिंग शुरू की। शुरू में कितने पैसे कमाए थे, अब तो बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया होगा, और वो क्या चीज़ें थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको ये बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला? पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं डॉक्टर साहब, आप ही की वीडियो है वो दिखाते हैं आपको। Category is best in land and infrastructure development, and the award goes to Wassia International. Dr. Muhammad Arshad will receive the award. 5th ICCI Business Excellence Awards of ICCI. Thank you very much. That's really good. Appreciation, sir. जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल उसका जवाब आप देना चाहें तो। इंसान किसी सूरत में भी हो, जब मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, तो उसको जब एक अप्रिशिएट किया जाता है उसको किसी सूरत में भी, तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमें जब अवार्ड मिला हमें महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमने मेहनत की थी, जो हमारे अंदर शौक़ था, जुनून था, वो लोगों को डिलीवर किया, तो उसका ये एजाज़ है। मैं हर कारोबारी आदमी को ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि एक बात जहन में रखें, इतना ही काफ़ी है बिजनेसमैन के लिए, जो कहे उस पर अमल करें। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। ज़ाहिरी बात है कि हमने देखा है कि बड़ा बूस्ट रियल एस्टेट ने दिया है पाकिस्तान की मईशत को,
लेकिन जो तरीक़ाकार आपने बताया जापान का, सिंगापुर का, बहुत सारे मॉडल हमारे पास हैं, अगर उस पर अमल दरामद किया जाए तो कितना, एक तो जो बेरोज़गारी है मुल्क में हम देखते हैं रोज़गार की बड़ी कमी है, कितने रोज़गार के मौके जो है फराहम हो सकते हैं, और ख़ासकर मईशत को ये कितना ये रियल एस्टेट सहारा दे सकता है अगर ज़बरदस्त तरीके से या जो प्लानिंग आपने बताई उस पर अमल दरामद किया जाए। अच्छा देखिए, ये जो मैं एज ए बिल्डर काम कर रहा हूँ, ये इसलिए मैं शुरू किया था कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मैं प्रोजेक्ट 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में डिलीवर कर दूँगा, तो वो 1-2 महीने की कमी पेशी होती है, वो हम डिलीवर कर देते हैं, हमारे ज़हन से बोझ उतर जाता है। मगर सोसाइटियों के मामलात इस किस्म के हैं कि वो बहुत ही टाइम लगता है, जो कहते हैं हम पूरा नहीं कर पाते, लोगों का इतमाद ख़त्म हो जाता है। बड़े बड़े अदारे जो हैं उन्होंने पैसे पब्लिक से लिए हुए हैं, 20-25 साल हो गए हैं, वो आज तक वो प्लाट डिलीवर नहीं कर सके। तो ये बड़ी शर्मनाक बात होती है कि किसी से पैसे लेके जिस मकसद के लिए लिए हैं उसको हम आप डिलीवर ना करें, तो ये बहुत ही नामुनासिब चीज़ है। बाकी रही आप रोज़गार की बात, मैं ना सारे पाकिस्तान को एक साइड पे करें, जब आप मेरी बात फिर वही ग्वादर पे आएगी। मैं कहता हूँ कि एक ही मैं मिसाल आपको देता हूँ कि 88,000 एकड़ अक्वायर की है ज़मीन, यहाँ ऑयल रिफाइनरियाँ लगेंगी, मुख्तलिफ मुल्क लगाएंगे, अपना मुल्क लगाएगा, तो वहाँ एक रिफाइनरी में कम से कम हज़ारों की तादाद में काम करेंगे। जब इतने एरिए में जब ये सारा जाल बिछेगा तो आप अंदाज़ा करें करोड़ों की तादाद में वहाँ पब्लिक की ज़रूरत होगी। इसके अलावा और भी बेशुमार, मैं तो किसी एक की बात आपको बताई है ना, वो वहाँ ज़मीन के अंदर ना कि सिर्फ सोना है बल्कि मुख्तलिफ मादनियात हैं, तेल है और सिल्वर है, लोहा है, काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे रिसर्च नहीं है, हम तो सिर्फ एक वक्त पास करने के लिए जो आता है सरकारी मुलाजम भी होता है माजरत के साथ, वो अपनी तनख्वाह और टीए के अलावा इतना नहीं सोचता कि जो मुल्क के लिए मुखलस हो। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुल्क लिसी वही है जिसमें हमारे पास जो कीमती जगह मौजूद है हम उन्हें फौरी तौर पर संभाल लें और वहाँ पर काम करें ताकि हमारी तरक्की जो है वो देर पा और जल्दी हो सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर आप लोगों से करने का मकसद भी ये था कि बस काम शुरू करना शर्त होता है, कारवां बनता चला जाता है, मदद होती चली जाती है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है सर, क्विक ब्रेक लेकर हम आते हैं वापस। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।